अस्सलाम वालेकुम मुझे कैसे हैं सब लोग, होप सो सब ठीक होंगे। आज हम पेपर देखेंगे, क्वेश्चन पेपर ग्रेड 7 सब्जेक्ट साइंस का। सो मेक श्योर करने की तैयारी करते हुए इस क्वेश्चन पेपर को लाजमी रेफर करें क्योंकि मेजर पोर्शन जो पेपर का है वो इसी क्वेश्चन पेपर में से आएगा। सो लेट्स सी दी ऑब्जेक्टिव पार्ट। क्वेश्चन 1 है, पार्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफाइल द एसेंशियल मिनरल्स आर। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द रूट इज, इसका करेक्ट ऑप्शन बी है एपिडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 3 है, जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स फॉर्म में system of pipelines from dash through the system of water conduction is the correct option B है root to leaves. Question number 4 है, farmer notice that the tall trees in his field show signs of water stress during hot summer. What is the primary reason of this? इसका correct option C है tall structure. Question number 5 है, which part of the circulatory system is responsible for carrying oxygenated blood to the body? इसका correct option D है arteries. Question number 6 है, respiration different from breathing because dash is produced, इसका correct option B है energy is produced. Question number 7 identify the given image. आपके पास ये image given है, ये आपके पास correct option है B है, ये alveoli का image है. Question number 8 है, what is why is an artery a good place to measure blood pressure? इसका correct option B है blood flow is high. Question number 9 है, the genetic material of a virus, इसका correct option D है genome. Question number 10 है, what is the specific role of thymus in immune system? इसका correct option B है. Question number 11 है, hepatitis is an infectious disease, it can spread through body fluid, is the correct option D है. Question number 12, COVID-19 is caused by, correct option C है virus. Question number 13 है, in a given image the labeled part X हमारे पास क्या है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है. क्वेश्चन नंबर 14 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल, वो हमारे पास 18 है, करेक्ट ऑप्शन सी है. क्वेश्चन नंबर 15 है, विच of the following coating of liquid can be used to prevent rusting? Question number इसका option B है. Question number 16 है, the chemical equation that shows the process of rusting is, आपके पास आयरन जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, correct option A. Question number 17 है, chemical bonding is primarily due to the attraction between nucleus and electrons, correct option D है. Question number 18 है, if the valency of magnesium is +2 and chlorine is -2, the chemical formula of magnesium chloride वो हमारे पास क्या होगा, MgCl2, correct option A है. Question number 19 है, with the increase of temperature solubility will be, correct option A है increase. Question number 20, identify the solvent in the from the given substance, correct option D है water. Question number 21 है, which symbol represent the SI unit of force? Newton, इसका correct option C है. Question number 22 है, if we drop a ball from a roof, which of the following forces cause it to fall through the ground? ये हमारे पास इसका correct option C है gravity. Question number 23 है, SI unit of frequency is correct option B है hertz. Question number 24 है, compression and refraction of particles occur in longitudinal waves. Question इसका correct option A है. Question number 25 है, how does an increase in frequency affects the pitch of the sound? इसका correct option A है increases. Question number 26 है, when an object is heated then its thermal energy, इसका correct option A है increases. Question number 27 है, which of the following option correctly shows the relationship between the Kelvin scale and the Celsius scale? तो आपने अगर कैल्विन स्केल में जाना हो तो सेंटीग्रेड में जो वैल्यू होती है उसमें 273 को ऐड कर देते हैं. इसका करेक्ट ऑप्शन सी है. क्वेश्चन नंबर 28 है, एन एग्जांपल ऑफ ब्लड कंडक्टर ऑफ हीट, इसका करेक्ट ऑप्शन बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसका करेक्ट ऑप्शन ए है वुड. क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक? क्वेश्चन नंबर इसका सी है प्रिवेंट माइक्रोबियल growth. Question number 30 है, drip irrigation is used to water which part of the plant root? Question इसका correct option C है. Question number 31 है, the force that keep plant in their orbit is gravitational force है. Planets sorry, इसका correct option A है gravitational force. Question number 32 है, the direction of lunar winds is eastward in the morning and dash in the evening westward. आगे हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 33 है, उसके 3 पार्ट्स हैं. डिफाइन आपने ट्रांसपायरेशन करना है. क्वेश्चन बी है, इसका सेकंड पार्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन प्लांट्स, इसका सी पार्ट है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन. क्वेश्चन नंबर 34 है, इसके भी 3 पार्ट्स हैं. डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, इसका बी पार्ट है. डिस्क्राइब द पाथवे ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द ब्लड टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट, इसका सी पार्ट है कंपेयर एनी टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स. क्वेश्चन नंबर 35 है, इसके भी 3 पार्ट्स हैं. डिफाइन एटम, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स. क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मास नंबर एटॉमिक नंबर. सी पार्ट है एटम इज फाउंड एज अ न्यूट्रल पार्टिकल एक्सप्लेन. क्वेश्चन नंबर 36 है, इसके 2 पार्ट्स हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं.
ए पार्ट है इसका हाउ कैन यूनिट्स ऑफ स्पीड बी डिराइव्ड। बी पार्ट है कार ट्रैवल 120 मीटर इन 10 सेकेंड देन 180 मीटर इन 15 सेकेंड। आपने एवरेज स्पीड निकालनी है इंटायर डिस्टेंस में। इसका सी पार्ट एक्सप्लेन हाउ फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। 37 उसका एक पार्ट है राइट द नेम ऑफ एनी टू कॉन्स्टेलेशंस। आपके पास इसकी की अगर देखा जाए तो बच्चे आपके पास की गिवन है। अच्छा, जो अभी हमने साइंस का पेपर डिस्कस किया ग्रेड 7 का, वो इंग्लिश मीडियम का था, और ये है हमारे पास उर्दू मीडियम के लिए। वही आपके पास MCQs पार्ट है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए कौन से मिनरल ज़रूरी हैं। हमारे पास बी करेक्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 2 है जड़ की फांसी तय होती है एपिडर्मस। क्वेश्चन नंबर 3 है पौधों में जाइलम टिश्यू पानी की तहसील के तने के जरिए तक पाइप लाइन तक एक निज़ाम बनाता है, जड़ों से पत्तों तक। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इंसान ने देखा कि इसके खेत में लंबे दरख्त सख्त गर्मी के दौरान पानी के बहाव के आसार दिखा रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है, लंबा कद। क्वेश्चन नंबर 5 है सर्कुलेटरी सिस्टम का कौन सा हिस्सा ऑक्सीजन वाले खून को जिस्म तक पहुंचाने का जिम्मेदार है, आर्टरीज। इसका डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 है रिस्पायरेशन सांस लेने के अमल से मुख्तलिफ है, क्यों? क्योंकि एनर्जी पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है दी गई शनाख्त तस्वीर की शनाख्त करनी है, एल्वोलाई। करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 8 है ब्लड प्रेशर की पैमाइश के लिए आर्टरी एक अच्छी जगह क्यों है? क्योंकि खून का बहाव वहाँ पे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है वायरस जेनेटिक मटेरियल है, हमारे पास इसका डी करेक्ट ऑप्शन है जीनोम। क्वेश्चन नंबर 10 है इम्यून सिस्टम में थायमस का मखसूस किरदार किया है, हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास हेपेटाइटिस एक मुतअद्दी बीमारी है जो कि फैल सकती है, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी जिस्मानी मादों से। कोविड-19 का हमारे पास सबब है, इसका करेक्ट ऑप्शन है वायरस। बच्चे इसको बोल्ड में कर देती हूँ 1 सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है दी गई तस्वीर में लेबल शुदा एक्स का हमारे पास जिक्र करता है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 14 है एटम के एम शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है 18। क्वेश्चन नंबर 15 है जंग से बचाव के लिए मंदरजा में से कौन से माया की कोटिंग की जाती है, इसका करेक्ट ऑप्शन बी है तेल की। जिंक के केमियाई अमल को जाहिर करने के लिए कौन सी इक्वेशन है आयरन को जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया जाता है या रिएक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है केमिकल बॉन्डिंग बुनियादी तौर पर डैश के दरमियान कशिश की वजह से होती है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 18 है अगर मैग्नीशियम की वैलेंसी प्लस या क्लोरीन की वैलेंसी -1 है तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है, हमारे पास MgCl2। क्वेश्चन नंबर 19 है दर्जा हरारत में इजाफे के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्वेश्चन नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 20 दी गई अशिया में से सॉल्वेंट की पहचान करते हैं पानी, करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 21 है कौन सा सिंबल फोर्स के यूनिट को ज़हर कहता है, हमारे पास न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 22 है अगर आप एक गेंद को नीचे फेंकते हैं गिराते हैं तो दरअसल में से किस फोर्स की वजह से ज़मीन पर गिरती है, ग्रेविटी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रिक्वेंसी का से यूनिट है हर्ट्स, करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 24 है पार्टिकल्स की कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन किस किस्म की वेव्स में होती है, लॉन्गिट्यूडनल में। क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रिक्वेंसी में इजाफे से आवाज़ की पिच पर क्या असर पड़ता है, बढ़ती है, इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 26 है जब किसी चीज़ को गर्म किया जाता है तो इसकी थर्मल एनर्जी बढ़ती है, इसका करेक्ट ऑप्शन भी ए है। हमारे पास मंदिर में से कौन सा ऑप्शन केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करता है, जब सेंटीग्रेड में 273 ऐड करते हैं तो वो केल्विन में आप कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 28 है हरारत के नाकिस कंडक्टर की मिसाल देनी है लकड़ी है। क्वेश्चन नंबर 29 है खुराक को महफूज करने की तकनीक का बुनियादी मकसद क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन सी है माइक्रोब्स की नशोनुमा को रोकना। क्वेश्चन नंबर 30 है ड्रिप एरीगेशन को पौधे के किस हिस्सों में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जड़ तक, करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 31 है वो फोर्स जो सियारों को अपने ऑर्बिट में रखती है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है। और क्वेश्चन नंबर 32 है कमरी हवाओं का रुख सुबह के वक्त मशरक़ी की तरफ और शाम के वक्त किसकी तरफ होता है, मगरिब की तरफ। क्वेश्चन इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। हिस्सा 2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 के 3 पार्ट्स हैं। ट्रांसपायरेशन की तारीफ करनी है, पौधों में जाइलम फ्लोएम के किरदार की वजाहत करनी है, ट्रांसपायरेशन की अहमियत बयान करनी है। क्वेश्चन नंबर 34 के भी 3 पार्ट्स हैं, प्लेटलेट्स के फाल बताने हैं, जिसम से फेफड़ों और वापस दिल तक ऑक्सीजनेटेड खून के रास्ते की वजाहत करें, आर्टरीज और वेन्स की कोई सी दो खसूसियात का मुवाजना करें। क्वेश्चन नंबर 35 एटम की तारीफ करें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताएं, मास नंबर और एटॉमिक नंबर के दरमियान तौलिक की वजाहत करें, एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल के तौर पर पाया जाता है, वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास स्पीड का यूनिट कैसे अखज़ किया जाता है। सेकंड पार्ट है एक कार 10 सेकंड में 150 मीटर और फिर 15 सेकंड में 180 मीटर का फासला तय करती है, कार की उस स्पीड पर आपने मालूम बतानी करनी है। इसका पार्ट 3 ये वजाहत करेंगे किस तरह फोर्स एक हरकत करते हुए जिसम की सिमत तब्दील कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 37 है इसके भी 3 पार्ट्स है, कोई से 2 कॉन्स्टलेशंस के नाम लिखे। क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, ये इंग्लिश मीडियम में मिसिंग था, वो यहाँ से देख सकते हैं। मैथ्स और वजन में कोई सिर्फ 2 फर्क लिखे, ज़मीन पर मौसम तब्दीली की क्या वजह है। ये आपके पास क्वेश्चन पेपर पहले हमने इंग्लिश का डिस्कस किया, अब उर्दू का, अभी हमारे पास इसका सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन आपके पास है
एमसीक्यूज़ के ऑप्शंस की मैंने आप इस तरह से याद करना चाह रहे हैं इस तरह से कर लें, या क्वेश्चंस के साथ एमसीक्यूज़ याद करना चाह रहे हैं तो वो ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिए, वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे आपको फिजिबिलिटी हो उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आगे हमारे पास ट्रांसपायरेशन की तारीफ लिखें, आपके पास ये उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है। डेफिनेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दी एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। पौधों के फ़ज़ाई हिस्सों से पानी के अखराज को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। पौधों में जाइलम और फ्लोएम के किरदार की वजाहत करें। पानी और मिनरल्स मट्टी से जड़ों तक डिफ्यूज़ होते हैं, जाइलम तने के जरिए पत्तों की तरफ ले जाते हैं और पत्तों में तैयार करदा खुराक फ्लोएम के जरिए पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाई जाती है। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, वाटर और मिनरल्स डिफ्यूज फ्रॉम soil to root and are conducted towards leaves through system by xylem and the foods prepared in leaves is ported to different parts of the plants through flame. ट्रांसपायरेशन की अहमियत बतानी है आपने। पहली बात, पत्तों की तरह सत्ता और गिर को भी ठंडा करता है। मिट्टी से पौधों के मुख्य हिस्से में मिनरल्स की नकलो हरकत करवाता है। नशो बेहतरी में मदद करता है। पौधों के दर्जा हरारत को कंट्रोल करता है। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कूल द सरफेस ऑफ लीव्स एंड सराउंडिंग एज वेल। इसका सेकंड पार्ट है या इसका अहमियत ये है, अलो द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम ऑन सॉइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तीसरा है हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फोर्थ है कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट। क्वेश्चन नंबर 34 है, इसका फर्स्ट पार्ट है प्लेटलेट्स के अफाल बयान करें। आप इंग्लिश उर्दू दोनों में लिख सकते हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे, उर्दू मीडियम वाले उर्दू में। प्लेटलेट्स मुकम्मल सेल्स नहीं है, ये साइटोप्लाज्म के टुकड़े होते हैं जो झीलों से बंद होते हैं। प्लेटलेट्स खून के जमने में अहम किरदार अदा करते हैं, ये खून जमने और जख्मों को बनने में मदद करते हैं। इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले प्लेटलेट्स आर नॉट कंप्लीट सेल्स, दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। प्लेटलेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बॉन्डिंग ब्लड कोटिंग clotting, sorry. They also help to slow or stop bleeding and heal wounds. जिसम नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसम से फेफड़ों वापस दिल तक डीऑक्सीजनेटेड खून के रास्ते की वजाहत करें। या आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, दाएं एट्रियम दुर्गों के ज़रिए ऑक्सीजन शुदा जो कम ऑक्सीजन वाला खून है वो हासिल करता है। एक जिस्म के ऊपरी हिस्से से खून लेकर जाता है और दूसरा जिस्म के निचले हिस्से से। बाय एट्रियम को फेफड़ों से ऑक्सीजन वाला खून, ज़्यादा ऑक्सीजन वाला खून मिलता है। दोनों एट्रिया एक ही वक्त में एक सुपरते हैं और बाय एट्रियम से बाय वेंट्री तक खून पहुँच जाते हैं। ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने अगर बुक से किया हुआ तो वही कर सकते हैं, यहाँ से करना चाह रहे हैं तो वही यहाँ से कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी कर सकते हैं। यहाँ पर दी राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम through two veins, blood with less oxygen, one carrying blood from upper part of the body and the other from the lower part of the body. The right atrium received oxygenated blood with more oxygen from the lungs. Both atria contracts at the same time and pump the blood from the left atrium to left ventricles and from right atrium to right ventricles. The two ventricles contract at the same time. During this contraction, the blood from left ventricles is pumped towards all the blood, body parts except lungs through the main artery called the aorta, and the blood from the right ventricle is pumped through the lungs. तो आप उर्दू इंग्लिश मीडियम वाले अपने परस्पेक्टिव आंसर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आर्टरीज और वेंस की कोई सी दो खसूसियात का मुआसना करना है तो ये आपके पास नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका मुआसना किया गया आर्टरीज और वेंस का। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लेंगे, उर्दू मीडियम वाले उर्दू में। आर्टरीज क्या करती हैं, खून को दिल से दूर लेके जाती हैं। वेंस खून को दिल की तरफ लेके जाती है। मोटी वॉल्स वाली वेसल्स होती हैं आर्टरीज, और वेंस क्या होती हैं, पतली वाल वाली वेसल्स होती हैं, दीवारों वाली। इसका थर्ड है कि जो आर्टरीज होती हैं हाई ब्लड प्रेशर का सामना करती हैं, जो वेंस होती हैं कम ब्लड प्रेशर का सामना करती हैं। और ये है कि हमारे पास इनमें वॉल्स नहीं होती, वेंस में वॉल्स होती हैं। इसका ऑप्शन है पार्ट है कि जिस्म के सेल्स के लिए ऑक्सीजन और ग़ज़ाई अज़्ज़ा वाला खून ले जाती हैं, मासवाए पल्मोनरी आर्टरीज के जो डीऑक्सीजनेटेड खून को लेकर जाती हैं। इसका वेंस है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर फजाजात को जिस खून की तरफ लेकर जाती है, मासवाए पल्मोनरी वेन के जो ऑक्सीजनेटेड खून लेकर जाती हैं। सिमिलरली आप इसको इंग्लिश मीडियम वाले ये आंसर करेंगे कि जो आर्टरीज होती हैं वो कैरी करती हैं ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट, और वेंस जो है वो कैरी करती हैं ब्लड वेसल टुवर्ड्स दी हार्ट। आर्टरीज जो है वो थिक वॉल वेसल्स होती हैं, वो थिन वॉल वेसल्स होती हैं, वो फेस करती हैं हाई ब्लड प्रेशर को, ये फेस करती हैं लो ब्लड प्रेशर को। यहाँ पे कोई वॉल्स नहीं होती, यहाँ पे वॉल्स होती हैं, और कैरी करती हैं ब्लड हैविंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फॉर द बॉडी सेल्स एक्सेप्ट pulmonary artery which contain deoxygenated, और इस तरह से रिटर्न करती है ब्लड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट एक्सेप्ट pulmonary veins which carries oxygenated blood। क्वेश्चन नंबर 35 है, एटम की तारीफ करें। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद लिखें। तो यहाँ पे उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे कि एलिमेंट का सबसे जो छोटा ज़रा होता है जो केमियाई रिएक्शन में हिस्सा लेता है उसको एटम कहते हैं। हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंग्लिश मीडियम में ये कहते हैं कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट का दैट इज कॉल्ड द एटम, और हाइड्रोजन में 1 ही होगा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में
8 होंगे। क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट पार्ट है मैस नंबर अटॉमिक नंबर के दरमियान फ़र्क लिखें। मैस नंबर जो होता है बच्चे वो टोटल जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उसको मैस नंबर कहते हैं। अटॉमिक नंबर जो ओवरऑल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि जो रिलेशनशिप दोनों के दरमियान के ए प्लस इक्वल टू जी प्लस एन। मैस नंबर जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड एन इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, जी इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। अटॉमिक नंबर बेसिकली इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। एटॉमिक न्यूट्रल पार्टिकल के तौर पर पाया जाता है। इसकी वजाहत करनी है मुख्तलिफ चार्जेस एक दूसरे को धकेलते हैं, उसमें चार्ज शुदा प्रोटॉन और मनफी चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स दाल में बराबर होते हैं, इसलिए इसके ऊपर कोई किसी किस्म का चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ऑपोजिट चार्ज से रिपेल करते हैं। द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स वो इक्वल होते हैं। इक्वल अमाउंट जो होती है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल होता है। स्पीड का यूनिट आपने बताना है। स्पीड का यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। इसको किलोमीटर पर आवर भी लिखा जाता है। इसका स्टैंडर्ड यूनिट वैसे कि मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। फासले के यूनिट को टाइम और फासले के यूनिट को मीटर में लिखते हैं और टाइम के यूनिट को सेकंड में। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं यूनिट ऑफ स्पीड जो होता है ऑब्टेन किया जाता है जब आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हो। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। नेक्स्ट है एक कार 10 सेकंड में 150 मीटर और 15 सेकंड में 180 मीटर का फासला तय करती है। कार की और स्पीड बतानी है आपने। जो स्पीड होती है वो बेसिकली होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो आप इसका टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो पहले टोटल डिस्टेंस ले लें 120 + 180 और फिर टोटल टाइम ले लें 25। सिमिलरली आप इसको इंग्लिश में भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वजाहत करें किस तरह फोर्स एक दूसरे के हरकत करते हुए जिस्म की सिमत तब्दील कर सकती है, डायरेक्शन चेंज कर सकती है। फोर्स किसी हरकत करते हुए जिसम की सिमत तब्दील कर सकती है। इस मिसाल को समझाया जा सकता है कि क्रिकेट मैच में जब बॉलर बॉल फेंकता है तो बैट्समैन इस बॉल को हिट करता है। इस तरह बॉल की हरकत की सिमत बदल जाती है। बल्लेबाज की तरफ से हरकत करती बॉल पर लगाई जाने वाली फोर्सेस की हरकत की सिमत बदल देती है। इसको इंग्लिश में भी आप बता सकते हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज कर सकती है। इसकी एग्जांपल ली जा सकती है क्रिकेट मैच में जब बॉलर जो है वो बॉल बैट्समैन की तरफ थ्रो करता है तो जब बैट्समैन हिट करता है तो वो बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कोई सी दो कॉन्स्टेलेशंस के नाम लिखने हैं। बिग डिपर है हमारे पास, लियो है, ओरियन है और ग्रेट बियर है। आगे हमारे पास है 2 डिफरेंसेस लिखने हैं मैस और वेट में, मैस और वज़न में। तो यहाँ पे मैस और वेट में आ जाएगा। मैस और वज़न में मैस क्या होता है किसी जिस्म में मादा के मिकदार को मैस कहते हैं और हमारे पास वज़न क्या है किसी जिस्म पर अमल करने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स को वज़न कहते हैं। इसका सेकंड है फ़र्क ये किसी भी कभी भी सिफर नहीं होता, ज़ीरो नहीं होता, ये ज़ीरो हो सकता है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। मैस हमारे पास अमाउंट ऑफ मैटर होती है, वेट ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। इसकी वैल्यू कभी भी मैस की ज़ीरो नहीं होती, इसकी वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, ठीक है। हमारे पास ज़मीन पर मौसमों की तब्दीली की वजह लिखनी है आपने। उर्दू वाले लिखेंगे कि ज़मीन की गर्दिश का महवर सूरज के गिर्द गर्दिश वाले करने वाले प्लेन के हवाले से मुख्तलिफ ज़ावियों पर झुका होता है। इस महवरी झुकाव की वजह से ज़मीन के मुख्तलिफ इलाके सूरज के गिर्द गर्दिश के दौरान अपना फासला तब्दील करते रहते हैं। ये ज़मीन को मौसम तब्दीली का बायस बनता है। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जो अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो टिल्टेड होता है एट सर्टेन एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्लेन ऑफ रोटेशन अराउंड द सन। Due to this axial tilt, different regions of Earth change their distance from the sun during the revolution around the sun. This causes the change in the seasons on the Earth. Pakistan lie in the northern hemisphere of the Earth. Let us see how seasonal change in the northern hemisphere of the Earth. तो ये आपके पास आंसर की भी गिवन है विद क्वेश्चंस एंड विद आंसर्स। आप इसको रेफर कर सकते हैं तैयारी के दौरान। तो स्टिल इससे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।